Hello friends, so I am back with my new lecture that is in continuation of the series of the lectures which I am currently doing in the nuclear energy sector. In the last lecture I have already explained you the three-stage program of the government in nuclear energy sector and what are the advantages of using thorium reserves, which are you already know that they are abundant in India over the uranium and plutonium combined. So we have understood the some tricks and bits about the nuclear energy in India and the program which government is currently undertaking to promote the nuclear energy. So after understanding something about nuclear energy sector, we will be continuing with the next lecture. In this lecture I am discussing about the structural reforms which are required in nuclear energy sector. Like you already know about this thing, that it still contributes only about 2.5% of the total energy usage which is required in India. So electricity actually. So it already provides 2.5% electricity which is being required in India. So it is very less as compared to the target which our current government has set to be around 20 to 25% by by 2025. So it seems almost impossible to achieve this target. So to how to achieve the target which government has set, so what are the reforms which are required in this sector, we will be discussing in this lecture. So I am starting with my lecture. So now, before jumping on to the reforms required in this sector, you should know why nuclear energy is required. So once you get to know the crux of the importance of nuclear energy, then we can look into the reforms which are required to improve upon the contribution of nuclear energy to the energy sector in India. Now, the first and foremost is nuclear energy is required to prevent climate change, that you already know. So I will be reading out the points that are self-explanatory in nature, but I will be reading out for your better understanding. So with the rising climate issues, a developing country like India faces the challenge where we are caught between energy security on one hand and climate security on the other. Okay, so you already know that here in India, or not only in India, but the discourse all around the globe is that how to balance the energy security on one hand and prevention of climate change. So energy should be there, energy should be provided to all people, to the country, and energy security should be there, but that should not come at the cost of the climate change. So you must keep a balance between the climate security and the energy security. So the need of the hour is to strike a balance between the enhancing the quality of human life for, to enhance the reachability of the secure energy to each and every human, and keeping a control over the climate change also. So researchers across the globe are studying about climate change on how to control CO2 emissions, which is a serious threat to the environment. Okay, to control the CO2 emissions. So it is very well understood. Now there is some fact which I have written here in this point, that as per the report of Intergovernmental Panel on Climate Change, so what is the target? That if we want to keep the temperature increase below 1.5 degree Celsius in 2100, कि हमें 2100 में अगर हम चाहते हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहे टेम्परेचर इंक्रीज, जो अभी करंट टेम्परेचर है एवरेज टेम्परेचर, उससे 1.5 डिग्री तक ही टेम्परेचर बढ़े, तो इट रिक्वायर्स कट्स इन ग्रीन हाउस गैस इमिशंस. ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कट करना है, रिक्वायर कट्स इन ग्रीन हाउस गैस इमिशंस ऑफ 45%. तो कितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन कट करना है? दैट इज़ 45% लेवल विच इज़ बिलो 2010 लेवल. जो 2010 लेवल में जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन था उससे 45% कम करना है 2030 तक, एंड 2050 तक तो ज़ीरो कर देना है. ठीक है ना? 2050 तक आपका जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो ज़ीरो करना है बाई 2050.
यानी कि 2030 तक तो 2010 से जो से में जो था उससे 45 कम करना है, और 2050 तक 2010 में जो था उससे 45% कम करना है, और 100% जो था ग्रीन हाउस गैस इमिशन उसको ख़त्म करना है। यानी कि 2010 में 45% कम करना है। मान लीजिए 100 यूनिट ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा था, तो 45% कम करके 55% करना है, 55, और 2050 तक तो 100 का 100% ख़त्म करना है। अगर हम ये अचीव कर पाते हैं तभी हम 1.5 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज से अपने ग्लोब को, अर्थ को बचा पाएंगे। विच कैन ओनली बी पॉसिबल विथ क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी ऑप्शन लाइक न्यूक्लियर एनर्जी। तो हमें ऐसे क्लीन एनर्जी रिन्यूएबल ऑप्शन यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये फैक्ट है, आपको ये याद कर लीजिए आप। 2030 तक 2010 लेवल से 45% कम करना, और 2050 तक ज़ीरो। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड बेस लोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, बेस लोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करना है। बेस लोड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही समझाया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है जो हम कंज्यूम करते हैं वो स्टेबल तभी आपको मिल पाएगी जब कोई न्यूक्लियर एनर्जी या कोई ऐसा स्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी आपको मिले। तो जैसे विंड एंड सोलर एनर्जी का मैंने बताया था कि विंड, क्योंकि तभी एनर्जी तभी जनरेट होती है जब विंड फ्लो होती है, और सोलर एनर्जी जब दिन होता है, तो ये बेस लोड प्रोवाइड नहीं कर सकते। बेस लोड न्यूक्लियर एनर्जी जैसा क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी ऑप्शन प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कोयला करता है। तो अगर आप रिन्यूएबल में जाओगे तो न्यूक्लियर एनर्जी करता है। उसके अलावा और भी हैं, ओशन एनर्जी है, और भी हैं, लेकिन अभी हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है। So nuclear plants can provide the base load. They give a steady stream of electricity day and night, just like coal और gas plants. विंड एंड सोलर प्लांट्स के बारे में बता दें कि इरेगुलर हैं, चीपर जरूर हैं बट इरेगुलर हैं। विद गैस नॉट अवेलेबल, हमारे पास गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है। कोल खत्म होने वाला है ड्यू टू रीजंस ऑफ कॉस्ट, हमें खरीदना पड़ता है बाहर से, और ग्लोबल वार्मिंग कंसर्न्स की वजह से। और कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कम से कम रिसोर्सेज तक एग्जॉस्ट होंगे 2050 तक। न्यूक्लियर सेवियर की तरह समझा जाता है कि ये कम से कम बचा लेगा हमें। इट ऑल्सो एडवांटेजेस ऑफ लेस लैंड यूसेज। उसके अलावा लैंड कम यूज़ होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश करने के लिए। रॉ मटेरियल कम यूज़ होता है, ऑब्वियसली यूरेनियम रेडियो एक्टिव मटीरियल यूज़ होता है। थोरियम एंड लॉन्गर प्लांट लाइफ, इसकी प्लांट की लाइफ लॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू सोलर एंड विंड प्लांट्स। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियर एनर्जी हमें चाहिए। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर हैविंग हायर HDI, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बढ़ता है अगर न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर आते हैं। वो कैसे? ये स्टैटिस्टिकली प्रूव किया गया है कि इट इज़ नेसेसरी टू हैव हायर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ एनर्जी टू हैव हायर HDI। तो हायर प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ एनर्जी होना चाहिए अगर आप हायर HDI चाहते हैं, बिकॉज HDI इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। तो कंजम्पशन जितनी ज़्यादा होगी किसी भी देश में, उतनी ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होगा। तो ये माना, ऐसा देखा गया है, इसलिए एनर्जी का प्रोडक्शन और कंजम्पशन अच्छा होना चाहिए। अब क्या है, नॉन सीन्स डेवलप्ड कंट्रीज यूज़ मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड। अब आपको ये भी पता है कि जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वर्ल्ड में, मेजॉरिटी जो है डेवलप्ड कंट्रीज ही यूटिलाइज करती हैं, और डेवलपिंग कंट्री के पास लो एक्सेस एनर्जी का। देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट डेवलप्ड कंट्रीज हैव द हायर HDI। और इसलिए डेवलप कंट्री के पास हायर HDI होता है क्योंकि एनर्जी सारी की सारी वो अपने पास ही रखते हैं, जो कि उनके डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। नाउ सीन्स मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी इज़ बीइंग जनरेटेड फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल, आपको पता है अभी तो करंटली नॉन रिन्यूएबल से जनरेट होती है, ऑयल, कोयल एंड गैस से। एंड दीज रिसोर्सेज आर मेजरली ऑक्यूपाइड बाय डेवलप्ड कंट्रीज, और ये डेवलप कंट्री के पास ये रिसोर्सेज हैं। देयरफॉर द ऑप्शन लेफ्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इज यूसेज ऑफ रिन्यूएबल। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है कि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करें। द रिन्यूएबल एनर्जी इज करंटली वेरी लिमिटेडली अवेलेबल across the globe. Therefore nuclear energy can be a viable option for developing countries to have more production of energy and thereby consumption of higher HDI। क्योंकि कह रहे हैं कि भाई नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास तो बहुत कम एक्सेस है उसका, तो हम कम से कम रिन्यूएबल पे लाई कर सकते हैं ताकि रिन्यूएबल को हम यूटिलाइज करें और उससे अपनी हायर HDI कर पाएँ। एज यू ऑलरेडी नो दैट गवर्नमेंट प्रोक्योर्स ऑयल, गैस एंड कोल फ्रॉम इंटरनेशनल कंट्रीज। और आप जैसे जानते हैं कि गवर्नमेंट प्रोक्योर करता है ऑयल, गैस एंड कोल फ्रॉम इंटरनेशनल कंट्रीज़, और बहुत सारा पैसा उसमें खर्च हो जाता है। अगर हम एनर्जी सेक्टर यहाँ डेवलप कर लें तो हम ये जो बहुत सारा पैसा हमारा इन प्रोक्योरमेंट ऑफ फ्यूल्स खर्च हो जाता है, जो हमारा बहुत सारा पैसा बाहर निकल जाता है देश के बाहर, तो हम ये जो सेव है, ये जो मनी सेव करेंगे उसको स्पेंड हम ह्यूमन HDI, डेवलपिंग HDI एंड ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हायर HDI के लिए भी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक न्यूक्लियर एनर्जी हमें चाहिए ही चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखें तो एग्जाम में आप कोट कर सकते हैं। मैं बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैंने आपको इंटरनेट से निकाल के लाया हूँ जो मैंने एक ही साथ सम अप किए हैं। इसके अलावा टू अचीव पेरिस डिकार्बनाइजेशन टारगेट्स, ये आप जानते हैं ऑलरेडी।
कि पेरिस में इंडिया ने ऑलरेडी कमिट किया है कि हमें हमें कुछ क्लाइमेट एमिशन, हमें कुछ GHG एमिशन कम करना है, कुछ हमें पावर कैपेसिटी इंडिया की कुछ डेवलप करनी है रिन्यूएबल से। तो ऐसे कुछ टारगेट्स हैं जो हमने वहाँ पे हमने उनको माना है कि वी विल फिक्स दोस टारगेट्स एंड वी विल फॉलो दीज टारगेट्स टू अचीव गोइंग टू अचीव इट। सो विदाउट न्यूक्लियर कंट्रीब्यूशन ये जो डीप डिकार्बोनाइजेशन टारगेट्स है उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, ये अचीव करना बहुत मुश्किल है, उनकी कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाएगी। वी एस्पायर टू अचीव 100% रिन्यूएबल एनर्जी इन अवर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन बाई 2030 तक। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग में तो रिन्यूएबल एनर्जी हम यूज़ करें, कोयला ऑयल गैस ना यूज़ करें। ना पेरिस एग्रीमेंट के अंडर में इंडिया ने 3 कमिटमेंट दिए हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट है ये। इंडिया ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट GDP विल बी रिड्यूस बाई 33 to 35% बिलो 2005 लेवल बाई 2030। तो 2030 तक 2005 लेवल के नीचे 33 से 35% जो ग्रीन हाउस गैस इमिट हो रही थी उसका 33 से 35 तक हमें डिक्रीज़ कर देना है। उसमें तो 2010 लेवल से 45% कम करना है 2030 तक, इसमें 2030 तक 33 से 35% कम करना है 2005 लेवल के नीचे। ये इंडिया ने कमिट किया है। इट कैन ओनली बी मेड पॉसिबल इफ रिन्यूएबल सोर्सेज आर अडॉप्टेड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड बायोमास फ्यूल्स derived फ्रॉम वेरियस ग्रासेस कुड सिग्निफिकेंटली मिटिगेट ग्लोबल वार्मिंग बाय रिड्यूसिंग कार्बन। ठीक है, कोई व्हीकल्स में बायोमास फ्यूल्स यूज़ करें, ब्लेंडेड फ्यूल यूज़ करें, इथेनॉल मिथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल यूज़ करें, उसके अलावा रिन्यूएबल सोर्सेज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो तभी हम अचीव कर पाएंगे। अलॉन्ग साइड 40% ऑफ इंडियाज़ पावर कैपेसिटी वुड बी बेस्ड ऑन नॉन फोसिल फ्यूल सोर्सेज। ठीक है, नॉन फोसिल यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर हमें इंडिया 40% पावर कैपेसिटी हमें बनानी पड़ेगी। एट द सेम टाइम इंडिया विल क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ, इतना हमें कार्बन सिंक बनाना है ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्वलेंट थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। हमें इतना फॉरेस्ट ट्री कवर चाहिए 2030 तक कि हम 2.5 से 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 हम ख़त्म कर पाए अपने ग्लोब से, अपने एडिशनल कार्बन सिंक हमें बनाना है कि इतना हम ख़त्म कर पाएँ, मिटिगेट कर पाएँ अपने ग्लोब से, अर्थ से। तो ये कुछ टारगेट्स इंडिया हैव एक्सेप्टेड द टारगेट्स। ओके, नाउ व्हाट आर दी लिमिटेशंस। ये हो गया कि क्यों चाहिए, अब क्या लिमिटेशंस क्या हैं। भाई हमें ये सब तो चाहिए बट लिमिटेशंस क्या है। एक तो ये लिमिटेशन है कि हमारे पास एनरिच्ड यूरेनियम नहीं है। आप ऑलरेडी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे पास नेचुरल अकरेंस यूरेनियम है, दैट इज़ यूरेनियम 235 एंड 238। लाइट वाटर रिएक्टर्स नहीं है हमारे पास, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से हमें न्यूक्लियर एनर्जी कैपेबिलिटी हमारी हैम्पर होती है। हम एनर्जी का पार्ट नहीं है और हमने NPT साइन नहीं किया। इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँगा। एक लेक्चर में ट्रीटीज़ के ऊपर बनाऊँगा। और इवन आपको जानकारी के लिए मैं बता दूँ, NPT का 50 साल पूरा हुआ है 2020 में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। देखो, लिमिटेशंस इन गेटिंग सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी को लेने में बड़ी मुश्किल है क्योंकि हम ना एनर्जी का पार्ट है और NPT हमने साइन नहीं की है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि 2005 में इंडिया US न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें इंडिया को एग्जेम्पशन दी गई थी कि इवन इफ इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ NSG इट कैन साइन बायलैटरल न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स विद मैनी कंट्रीज who can provide the required technology and the material to develop the civilian nuclear technology. So India's nuclear apartheid and unchained India from the technology denial regimes of the Nuclear Non-Proliferation Act of 1978 which came in the wake of, क्योंकि इंडिया ने 1974 में किया था, तो 1978 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एक्ट पास किया गया, जिसके द्वारा कोई भी कंट्री जो कि इसको साइन करेगी वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं कर सकती। The nuclear deal was aimed to help India to meet its looming energy crisis by enabling it to access to safeguarding nuclear fuel, advanced light water reactors and civilian, यही मैंने बोला जैसे आपको कि एनर्जी क्राइसिस ख़त्म करना है by enabling it to access to nuclear fuel, और सिविलियन के लिए यूज़ करना है हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। बट India still lags behind in taking advantage of getting nuclear technology waiver from NSG countries due to its liabilities laws। जो हमारे यहाँ liability law हैं, ठीक है ना, उसकी वजह से अभी भी जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ था और जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स अलग अलग कंट्रीज़ के साथ हमने जो साइन किए उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मतलब साइन तो हो गए लेकिन हमें वो टेक्नोलॉजी और वो मटेरियल नहीं मिल रहा है। वहाँ से क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इंडिया की लायबिलिटी लॉज पे बहुत सारी कंटेंशन है। उसके बारे में हम इस लेक्चर में थोड़ी सी बात करेंगे, तो आपको मैं समझा दूंगा कि क्या प्रॉब्लम्स है इंडिया के लायबिलिटी लॉज में, जिसकी वजह से इंडिया को ये एग्रीमेंट साइन होने के बावजूद भी मटेरियल टेक्नोलॉजी विदेशों से नहीं मिल रही है। तो ये लिमिटेशंस हैं।
ना क्या रिफॉर्म्स चाहिए, ठीक है ना, इसके बारे में जो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट, तो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए, ये हम बात कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि NPCIL एक गवर्नमेंट संस्था है जो कि सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। नॉट ड्यू टू नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन ऑपरेटिंग NPP, अभी गवर्नमेंट संस्था है जो पार्टिसिपेट करती है, प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। एंड प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर एनर्जी एटलीस्ट फॉर सिविलियन न्यूक्लियर पर्पजेज, वी आर नॉट एबल टू प्रोग्रेस मच इन दिस सेक्टर, ठीक है, हम प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं। ऑल्दो द गवर्नमेंट अलाउड प्राइवेट एंटरप्राइज टू प्रोवाइड, लेकिन गवर्नमेंट ने फिर भी ये वो दिया है प्राइवेट सेक्टर को, होल हार्टेडली नहीं, आप फुल उससे नहीं आ सकते, आपको PPP मोड में काम करना पड़ेगा। और बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, बहुत लार्ज स्केल पावर प्लांट्स में, बहुत हाई जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो कुछ लिमिटेशंस लगाई हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि आपको फुल फ्लैज इन्वॉल्व करना पड़ेगा सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, मिलिट्री यूसेज के लिए नहीं, और जो इंडिया के सिक्योरिटी यूसेज के लिए, जो सिविलियन के लिए वो न्यूक्लियर एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी में हम यूज़ करेंगे, जो मेडिसिन में यूज़ करेंगे, जो सिविलियन के लिए काम आएगी, उस न्यूक्लियर एनर्जी को कम से कम प्राइवेट सेक्टर के लिए आपको खुलना चाहिए। ए बेटर रिलेशनशिप एंड डीपर एंगेजमेंट बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट, जो मैंने कहा है, वो सब्सटेंशियली एंड एक्सपीडिशियसली इंप्रूव इंडियाज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर पावर एज वेल एज डेवलप एंड इंप्रूव अपॉन द कंट्रीज पर्सनल इंडिजिनियस पर्सनल एक्सपर्टाइज। इंपॉर्टेंट, ये सिंपल है। दो द गवर्नमेंट हैज ओनली अनाउंस प्राइवेटाइजेशन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी सेक्टर इन ए लिमिटेड वे, जैसे मैंने कहा, still the private sector can help bring about energy security in the country with nuclear energy. A lot of profit making public sector undertakings like the NPCIL can mobilize funds together and set up joint ventures with the private sector to set up nuclear power plant, and this can be done within existing laws itself. तो मैं जो बात कर रहा हूँ कि NPCIL को PPP मोड में काम करके इनके साथ जो है कोलैबोरेशन करके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का बिल्ड करना चाहिए देश में, ताकि जो टेक्नोलॉजी है प्राइवेट सेक्टर के पास उसको यूटिलाइज करके हम बेटर से ज़्यादा प्रोडक्शन न्यूक्लियर एनर्जी का कर सकें अपने देश में, ओनली फॉर सिविलियन पर्पस। ऑफ कोर्स सच यूनिट्स विल बी स्मॉल कैपेसिटी वंस, लेकिन ये यूनिट जो है स्मॉल कैपेसिटी वंस, छोटी कैपेसिटी की होंगी। ए टाइम विल कम व्हेन वी विल नीड लार्ज, और अभी तो यही कर सकते हैं क्योंकि एग्जिस्टिंग लॉज हमें इजाज़त नहीं देंगे। गवर्नमेंट को फिर पार्लियामेंट में लॉ पास करके इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि इसको पहले लीगल करना पड़ेगा और फिर ही ऐसे जो प्राइवेट सेक्टर को फुल फ्लैज मोड में न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में एंटर करने की परमिशन मिल पाएगी। वैन वी विल नीड लार्जर यूनिट्स विद कैपेसिटीज ऑफ 1 लाख टू 2000 मेगावाट्स, एंड फॉर दैट द गवर्नमेंट विल हैव टू इनेक्ट न्यू लॉज फॉर एंट्री ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो अभी 1000 मेगावाट, 2000 मेगावाट, 10,000 मेगावाट, 20,000 मेगावाट, 50,000 मेगावाट तक मिल सकती है परमिशन, बट 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख मेगावाट की अगर आपको चाहिए बिजली, तो उसके लिए आपको बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने पड़ेंगे, और वो तभी पॉसिबल है जब प्राइवेट सेक्टर के लिए लॉज मॉडिफाई हों और उनको आने की परमिशन दी जाए। तो ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज़ अटमोस्ट रिक्वायर्ड अगर हम इस क्षेत्र में और तरक्की करना चाहते हैं। तरक्की तो हमने की नहीं है, अगर हमारा जो टारगेट है कि 25 कम से कम 25, अभी जो 6 गीगावाट है उसको 25 गीगावाट कर दें 2030 तक, कैसे करेंगे भगवान जाने। एनर्जी शुड बी चीपर, एनर्जी चीपर होगी, रिफॉर्म्स चाहिए कि एनर्जी चीपर होनी चाहिए जो कि अभी महंगी है। द एवरेज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द एग्जिस्टिंग 22 रिएक्टर्स इन द कंट्री इज अराउंड 2.8 किलोवाट पर आवर, बट द न्यू प्लांट्स विच कॉस्ट रुपीज़ 15-20 करोड़ पर मेगावाट टू सेटअप। अब जो PHWR हमारे यहाँ अभी प्रेशराइज है उनकी तो 2.5-3 रुपये पड़ रही है किलोवाट, जो एवरेज कॉस्ट है, जो कि ठीक है, जो कि अचीवेबल है, मतलब जो कि चीपर है। बट अभी जो प्लांट्स आ रहे हैं ना फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के ऊपर जैसे काम चल रहा है, जो विच कॉस्ट 50-20 करोड़ पर मेगावाट टू सेटअप, विल प्रोड्यूस एनर्जी डेट कैन नॉट बी सोल्ड कमर्शियली बिलो एटलीस्ट 7 यूनिट। 7 से नीचे हम नहीं बेच पाएंगे क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी हमारे देश में भी है नहीं। तो जो जैसे मैंने कहा प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। न्यूक्लियर पावर इज़ प्राइसिंग इटसेल्फ आउट ऑफ द मार्केट, ऑब्वियसली इतनी महंगी बिजली कोई नहीं खरीदेगा। ए न्यूक्लियर पावर प्लांट टेक्स ए डेकेड टू कम अप, हु नोज वेयर द कॉस्ट विल एंड अप व्हेन इट बिगिंस जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई आपको बनाने में इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो जब ये जनरेट करने की नौबत आएगी तब तक क्या हाल हो चुका होगा, कितना पैसा खर्च हो चुका होगा, कितना आप रिकवर कर पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। द गवर्नमेंट मस्ट एड्रेस इशूज़ रिलेटेड टू द, इसके लिए क्या करना होगा, जो इशूज़ आते हैं, कैसे आते हैं इशूज़, प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटीज सच लैंड एक्विजिशन नहीं हो पाता टाइमली, क्लियरेंसेज नहीं मिल पाता मिनिस्ट्रीज से, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से, और फॉरेन कोलैबोरेटर्स नहीं मिल पाते। इन एडिशन कंटिन्यूअस एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू ब्रिंग डाउन कैपिटल कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की जो कॉस्ट है उसको ब्रिंग डाउन करने के लिए एफर्ट होना चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट ट्राई फॉर कम्प्लीटली टाइमली कंप्लीशन ऑफ द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, जितने भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं
उनके टाइमली कंप्लीशन के लिए गवर्नमेंट को स्ट्राइव करना चाहिए। फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंडिया वाज डिपेंडेंट ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी पार्टनर्स सच एज रशिया एंड फ्रांस। फॉर हम ऑब्वियसली इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। इंडिया ने बायलैटरल एग्रीमेंट्स कई कंट्रीज़ के साथ किए इंक्लूडिंग रशिया एंड फ्रांस। नाउ 10 indigenous PHWRs with a capacity of 700 megawatt are under implementation stages. If commercially successful, the nuclear power plant could achieve faster and cost-effective replication. तो कॉस्ट इफेक्टिव रेप्लिकेशन तभी हो पाएगा जब प्राइवेट सेक्टर को हम इन्वॉल्व करेंगे और जो विदेशी कंपनी है और जो कंट्रीज है जिनके साथ हम एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं उनके जो भी इश्यूज़ हैं, एप्रीहेंशंस हैं, कंटेंशंस हैं, उनको हम सॉल्व कर पाएँ, तभी हम जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको चीपर अपने देश में दे पाएंगे। तो रिफॉर्म्स क्या चाहिए? अलाउइंग एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर, और जो रोड ब्लॉक्स हैं, ये क्लियरेंसेस का और जो फॉरेन कोलैबोरेटर्स का और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के जो कैपिटल कॉस्ट को ब्रिंग डाउन करने के लिए जो काम करना चाहिए वो हमारे देश में सरकारों को करना पड़ेगा, तभी हम जो है एनर्जी चीपर दे पाएंगे। तो एनर्जी चीपर करने के लिए जो रिफॉर्म्स चाहिए वो मैंने अभी आपको बता दिए। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको बात की थी कि कौन से लाइबिलिटी लॉज हैं जो कि इंडिया को चेंज करने पड़ेंगे, तो मैं बताता हूँ क्या है। एक्चुअली क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स आप ऑलरेडी जानते हैं कि दे आर प्रोन टू सीरियस एक्सीडेंट्स। इन दिस कंटेक्स्ट द ऑपरेटर ऑफ द रिएक्टर, अब इसमें क्या है ना, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी कहीं लीक हो जाता है, जैसे फुकुशिमा में लीक हुआ है, ठीक है ना, फुकुशिमा में और भी 1-2 जगह लीक हुआ है। तो जहाँ पे भी ये न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होने का खतरा रहता है, ऑब्वियसली कहीं भी हो सकता है। तो क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत प्रोन है सीरियस एक्सीडेंट्स के लिए, बहुत कम होते हैं बट होते हैं तो बहुत खतरनाक होते हैं। सो इन दिस कंटेक्स्ट अब इसमें क्या है ना, ऑपरेटर ऑफ द रिएक्टर वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनसेशन। ऑपरेटर जो ऑपरेट कर रहा है रिएक्टर को वो होना चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबल हो कंपनसेशन का, एंड नॉट द सप्लायर नहीं होना चाहिए। दिस इज़ ट्रू आफ्टर इंडिया और कन्वेंशन ऑफ सप्लीमेंट्री कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज। जो ये कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन, ये ऑलरेडी इंडिया ने रेटिफाई किया है और इंडिया इज़ बाउंड बाय दिस ट्रीटी टू कन्वेंशन टू होल्ड दी ऑपरेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी न्यूक्लियर एक्सीडेंट, नॉट दी सप्लायर। बट इशू क्या है? नाउ इशू मैं आपको नीचे बताऊंगा। इंडिया आफ्टर मैथ ऑफ 1998 पोखरण टेस्ट, इंडिया फेसेस न्यूक्लियर आइसोलेशन अक्रॉस दी वर्ल्ड। दिस चेंज आफ्टर द, ये आपको पता है। इन एडिशन इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद IAEA इन 2009 टू प्लेस सिविलियन न्यूक्लियर एक्टिविटी फैसिलिटीज अंडर IAEA safeguards. This paved the way for US companies to engage in nuclear commerce with India. ठीक है। However, despite the India-US nuclear deal, the nuclear liability regime in India was seen as a hurdle for foreign companies to invest in India's nuclear sector. क्या hurdle है? The major hurdle for companies to do nuclear commerce with India was the, जो हमने CLND Act पास किया था, Civil Liability for Nuclear Energy Act, Nuclear Damage Act, which held suppliers of nuclear power projects liable. अब इसमें क्या है ना, जो सप्लायर है जिसने आपको रिक्रूटमेंट दिया, सप्लायर तो बाहर, हम तो बाहर से ही ले रहे हैं, सप्लायर तो बाहर ही, ऑपरेटर हमारे NPCI होगा। लेकिन हमारे देश में जो हमारा कानून है CLND Act, वो कहता है कि सप्लायर को आपको अकाउंटेबल रखना होगा। अब सप्लायर को अकाउंटेबल कर देंगे तो सप्लायर कोई आना ही नहीं चाहता, यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं देना चाहता, कोई टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहता। डिस्पाइट कि इंडिया ने साइन किया ये कन्वेंशन ऑफ सप्लीमेंट्री कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज, इसके डिस्पाइट इंडिया का जो कानून है वो ऑपरेटर सप्लायर को जिम्मेवारी देता है कि वो कंपनसेट करें, वो लाइबल होंगे और वो कंपनसेट करेंगे और उनके ऊपर ही पेनल्टी और जो भी पनिशमेंट है उनको ही दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम इसके ऊपर। और तो जो कन्वेंशन ऑफ सप्लीमेंट्री कन्वेंसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज है, इंडिया इसको रेटिफाई कर चुकी है। दिस मार्क्ड इंडियाज विलिंगनेस, तो इंडिया ने, इससे पता चलता है कि इंडिया ने एक्सीड कर लिया है, ये मान लिया है इंटरनेशनल न्यूक्लियर लाइबिलिटी रिजीम विच होल्ड दी ऑपरेटर लाइबल टू पे अप डैमेज, जिसमें ऑपरेटर को जिम्मेवार ठहराया गया। बट इंडिया ने सप्लायर को दिखाया, हाउ इट प्रोवाइड फॉर ऑपरेटर टू हैव द राइट टू रिकॉर्ड विद द सप्लायर, लेकिन ऑपरेटर के बाद भी सप्लायर से रिकॉर्ड्स होगा एज पर दिस कन्वेंशन। लेकिन ये जनरली नहीं होता है, ऑपरेटर को ही लाइबल माना जाता है क्योंकि ऑपरेटर सप्लाई से वो नहीं कर पाता, रिकॉर्ड्स नहीं कर पाता। हाउ स्टिल द मेजर हर्डल फॉर कंपनीज टू डू न्यूक्लियर कॉमर्स विद इंडिया वाज दी CL, वही जो मैंने आपको बताया, विच हेल्ड दी सप्लायर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लाइबल इन केस ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स एंड पॉइंट इज स्टिल कंटेंशियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर अभी भी कानून गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट नहीं किया इस कानून में, तो अभी भी इसलिए हमें टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है। उसके अलावा इंडिया इज ऑल्सो लॉन्च एन इंश्योरेंस पूल विद लाइबिलिटी, एक इंडिया ने इंश्योरेंस पूल लॉन्च किया 1500 करोड़, ये आप जान लीजिए, टू कवर द, अब इसमें क्या है ना, सप्लायर को जो पैसा देना पड़ेगा उसको कवर करने के लिए, ठीक है ना, बट दैट इज़ टू लेस, ये बहुत कम है। एन इंश्योरेंस पूल ऑफ 1500 करोड़ इट कैप्ट असाइड, ठीक है ना, ये कम है। और साथ में 1500 करोड़ में से 750 करोड़ तो NPCIL यानी कि ऑपरेटर को देना पड़ेगा, एंड एडिशनल 750 करोड़
4 स्टेट ओन इंश्योरेंस कंपनी एडमिनिस्टर्ड बाय, और ये इंश्योरेंस कंपनीज को देना पड़ेगा जो कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी उस ग्रुप का पार्ट होगा, मतलब हेड होगा, एडमिनिस्टर्ड बाय दिस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो 1500 करोड़ तो यहाँ से आ गया, और गवर्नमेंट को 1110 करोड़ गवर्नमेंट देगी। तो बेसिकली क्या दे कौन रही है? गवर्नमेंट। सप्लायर तो दे ही नहीं रहा, सप्लायर को तो उन्होंने फ्री कर दिया। तो अब आप कहेंगे कि सप्लायर को फ्री कर दिया, फिर क्या दिक्कत है? तो व्हाट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ सप्लाईज? तो सप्लायर की कोई लाइबिलिटी रही नहीं, ठीक है ना। फिर क्या प्रॉब्लम है कंट्रीज़ को? तो ये प्रॉब्लम है कि ये जो 2000 करोड़ है, 1500 और 1100 2600, इट इज़ टू लेस। जनरली 5 से 6000 करोड़ रुपये चाहिए होगा अगर आपको पैसा मतलब इसके लिए जो पैसा रिक्वायर्ड है डेट इज़ अराउंड 5 to 6000 करोड़। तो ये कम है। आपको सप्लायर से ही आपको जो है ऑपरेटर से, अगर आप ऑपरेटर से पैसा लेते हैं तो ऑपरेटर तो गवर्नमेंट ही है, तो गवर्नमेंट तो हार्ड टैक्स पेयर मनी जो टैक्स पेयर मनी है उसमें से निकाल के दे देगी, तो टैक्स पेयर मनी का नुकसान हो जाएगा। तो दोनों जगह पेच है। अगर सप्लायर को अकाउंटेबल ठहराते हो तो कोई कंट्री बाहर से नहीं आएगी, और अगर ऑपरेटर को ठहराते हो तो ऑपरेटर तो इंडियन ही है। तो या तो ऑपरेटर आप प्राइवेटाइजेशन करो कि प्राइवेट सेक्टर इसको ऑपरेट करे, ताकि प्राइवेट सेक्टर अकाउंटेबल, और जो टैक्स पेयर मनी है उसका इस तरीके से वेस्टेज ना हो। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम जो 1500 करोड़ की है वो ये है कि इसमें सप्लायर की तो कोई लाइबिलिटी है नहीं। जो गवर्नमेंट ने अपने कानून के द्वारा सप्लाई की लाइबिलिटी होल्ड की है, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि सारी तो गवर्नमेंट रन कंपनीज ही पैसा दे रही हैं। लेकिन ये कम है, 2600 करोड़ जो है ये कम है। बाकी तो लाइबिलिटी भी सप्लायर की आएगी। अगर 5-6 करोड़ की लाइबिलिटी आएगी तो सप्लायर की लाइबिलिटी आएगी, ऑपरेटर की बाकी लाइबिलिटी नहीं आएगी। तो सप्लायर तो आना ही नहीं चाहते यहाँ पे इस वजह से। तो आप ये तभी इसको अचीव कर पाएंगे जब आप प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट आप ऑपरेटर साइड पे करेंगे। ऑपरेटर शुड ऑल्सो बी सेक्टर शुड बी ओपन फॉर ऑपरेटिंग द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ऑल्सो सेटिंग अप ए न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना करें एट द अर्लीस्ट वुड बी हेल्पफुल। ये हेल्पफुल होगा फॉर ऑल दी न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम्स। तो एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी टू इंश्योर दी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ दी एनपीपी, ये होना चाहिए। इसके ऊपर हम अभी डिटेल में बात करेंगे। NSRA, ठीक है, यही जो स्ट्रेंथनिंग रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म शुड बी स्ट्रेंथन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ बीन पॉइंटेड आउट सेवरल टाइम्स इन द पास्ट। कई रिपोर्ट्स में, कैग की, पैक रिपोर्ट में, IAEA ने भी बोला है दैट इंडिया डज नॉट हैव, हमारी न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ना अभी AERB है, दैट इज एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। इट इज़ एंट्रस्टेड विद रेगुलेटिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बट ये ऑटोनोमस बॉडी नहीं है एंड कम्स अंडर द परव्यू ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। अब एटॉमिक एनर्जी कमीशन के परव्यू में आती है। अब AIRB रिपोर्ट्स करती है एटॉमिक एनर्जी कमीशन को। अब एटॉमिक एनर्जी कमीशन को चेयर करता है सेक्रेटरी, जो कि DAE का सेक्रेटरी है। तो यानी कि इनडायरेक्टली बोल दीजिए कि AIRB इज रिपोर्टिंग टू DAE। सो ऑल द NPP आर ऑपरेटेड बाय NPCIL विच रिपोर्ट्स टू DAE। अब DAE के अंडर में सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आते हैं, क्योंकि NPCIL ऑपरेट करता है और DAE के अंडर में होता है। तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर एज यू कैन सी दैट AIRB हैज़ टू रेगुलेट द NPP सेफ। अब AIRB को उनकी सेफ्टी इंश्योर करनी है जो DAE के अंडर में आती है। दस AIRB को रेगुलेट किसको करना है? DAE को, क्योंकि DAE के अंडर में आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को, और DAE को रिपोर्ट करना है। तो दैट मीन्स कि इट हैज़ टू रेगुलेट समथिंग विच कम्स अंडर द अथॉरिटी टू विच इट इज़ सपोज टू रिपोर्ट। वो उस अथॉरिटी के अंडर में आता है जिसको रेगुलेट करना है, जिसको इसको रिपोर्ट भी करना है, यानी कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। भाई DAE के अंडर में आ जाएंगे ना सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट, उनको रेगुलेट करना है और रिपोर्ट भी DAE को करना है, टू विच इट इज़ सपोज टू रिपोर्ट। तो कैसे चलेगा? मतलब इसको ये समझ लीजिए कि मान लीजिए पुलिस है, पुलिस को चाबुक चलाना है A पे, पुलिस को गिरफ्तार करना है A पे, ठीक है। और A जो है ना वो सरकार के अंडर में आता है। तो पुलिस कैसे चलाएगी? क्योंकि वो सरकार को ही रिपोर्ट करती है और सरकार के अंडर में वो A पर्सन आता है। तो जैसे मान लीजिए अभी जैसे महाराष्ट्र में ही हो रहा है, आप समझ रहे होंगे कि महाराष्ट्र में जो है पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है, कुछ भी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट करती है गवर्नमेंट को। तो कैसे कार्रवाई करेंगे? यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है ना, कि आप जिसके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं, अगर वही बंदा फॉर एग्जांपल आप क्रिमिनल्स मान लीजिए, क्रिमिनल के ऊपर कार्रवाई नहीं करती पुलिस, क्यों नहीं करती? कभी किसी अगर उसको पॉलिटिकल सक्षम है, क्योंकि उसको जिसके ऊपर कार्रवाई करनी है वो खुद उसको रिपोर्ट कर रहा है, वो सरकार के अंडर में आता है और सरकार को खुद रिपोर्ट करती है। तो ये जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, इसमें कोई काम नहीं हो सकता। तो तभी मैंने बात की थी पुलिस रिफॉर्म्स में कि पुलिस को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसी तरीके से AIRB को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए।
सो जो प्रपोज न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल है जो लैप्स हो गया अब, इज सीन एज ए क्रूशियल स्टेप इन स्ट्रेंथनिंग द फंक्शनल इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्रीज एटॉमिक रेगुलेटर। फंक्शनल इंडिपेंडेंस होना चाहिए एंड गिव इट द नेसेसरी स्टैट्यूटरी बैकिंग। वो कब होगा? जो मैंने पुलिस रिफॉर्म्स में बात की थी उसमें ही बात कर रहा हूँ कि न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटरी अथॉरिटी शुड बी स्टैट्यूटरी should be given statutory status. Giving it the statutory status make it independent of Department of Atomic Energy. The independent regulatory body can keep the public fully informed on matters of public safety, can ensure physical security of installations by increasing the frequency of routine on-site inspections at NPP. ठीक है ना, इनकी ऑब्वियसली सिक्योरिटी वगैरह इंश्योर करेगी, पब्लिक को इन्फॉर्म करेगी। द अथॉरिटी टू पेनलाइज जो ऑफेंडर्स हैं, यानी कि जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अगर प्रॉपर्ली रन नहीं हो रहे हैं, जो भी ऑफेंडर्स हैं हु वायलेट द प्रोविजंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एंड सबमिशन किसको करेगी? टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो किसी डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव को नहीं करेगी रिपोर्ट, बल्कि लेजिस्लेचर को रिपोर्ट करेगी। तो उससे काफ़ी हद तक ये इंडिपेंडेंट हम कर सकते हैं और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड स्ट्रेंथन कर सकते हैं इंडिया का रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जो कि बहुत ज़रूरी है स्ट्रेंथन होना। सेफली डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। ठीक है, न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में आप जानते हैं, इसका भी डिस्पोजल करना बहुत ज़रूरी है। तो मेजर कंसर्न क्या है कि न्यूक्लियर वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि आप जानते हैं न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि न्यूक्लियर के बाद जब एनर्जी जनरेट हो जाती है तो जो वेस्ट बच जाता है। नाउ इंडिया ने अडॉप्ट किया न्यूक्लियर रिसाइकिल टेक्नोलॉजी, जिसमें हम 98% न्यूक्लियर वेस्ट को रीयूज़ कर रहे हैं। तो वेयर द न्यूक्लियर फ्यूल वंस यूज फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी इज रीयूज्ड, हम रीयूज़ कर लेते हैं यूरेनियम प्लूटोनियम को एज अ रिसोर्स मटेरियल बाय द कमर्शियल इंडस्ट्रीज आफ्टर रिसाइकलिंग। रिसाइकिल करके हम वापस कमर्शियल इंडस्ट्रीज में इसको रीयूज़ कर लेते हैं। तो हमारा 98% ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, तो उसको हमें प्रायोरिटाइज करना है रिसाइकलिंग को, कि हम 98% यूज़ कर सकें। अब बाकी जो 2% बचा, इसमें रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, विच इज़ 2%, जिसमें एक्टिनाइट्स निकलते हैं, विच आर विट्रीफ। एक्टिनाइट्स आप जानते हैं जो पीरियोडिक टेबल में जो 104 से स्टार्ट होते हैं, 90-100 के आसपास से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद की जो लेटर में सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल्स, नेम मेनली द एक्टिनाइट्स आर विट्रीफाइड एंड स्टोर्ड एट सेफ स्टोरेज। ये हम स्टोर करते हैं अभी सेफ स्टोरेज में। नाउ दीज माइनर एक्टिसाइड शुड बी सेपरेटेड, ये सेपरेट होने चाहिए। अब 2% हम इसको सेफ रखते हैं। अब इनमें से ना माइनर जो वेस्ट है, इसमें से हम अगर माइनर एक्टिनाइट्स निकाल लें रेडियो एक्टिव वेस्ट में, क्योंकि दीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी लॉन्ग, इसी वजह से जो रेडियो एक्टिव वेस्ट की ना शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो जाती है, यानी कि लाइफ ज़्यादा हो जाती है। जो उसके अंदर से हार्मफुल गामा रेज इमिट होती हैं, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है इन एक्टिनाइट्स की वजह से। तो बहुत ज़रूरी है कि जो 2% वेस्ट है उसमें से हम माइनर एक्टिनाइट्स अलग कर लें, सो दैट द 2 वेस्ट कैन बिकम बेनाइन इन 300 ईयर। अब अगर हम कर पाएंगे तो 3-2 साल में इस वेस्ट को हम पूरी तरीके से डिकम्पोज ख़त्म कर पाएंगे, अगर हम एक्टिनाइट्स अलग करने में अचीव हो पाते हैं, तो सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो गवर्नमेंट को ये रिफॉर्म करना चाहिए कि जो 2% वेस्ट है उसमें से जो एक्टिनाइट्स हैं उनको अलग करने की जो टेक्नोलॉजी है उसको काम रिसर्च करे, और 2% वेस्ट में से एक्टिनाइट्स को अलग करने पर सफलता हासिल करे। तो ये बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द लास्ट स्लाइड। इसके अलावा रिफॉर्म्स क्या चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रमोशन ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन। न्यूक्लियर मेडिसिन को प्रमोट करे सरकार और फूड टेक्नोलॉजी में यूज़ करें। जो मैंने कहा था सिविलियन पर्पज़ के लिए आप न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ कर रहे हो। तो न्यूक्लियर आइसोटोप्स आप जानते हो ऑलरेडी कैन बी यूज फॉर थेराप्यूटिक पर्पज़, यानी कि मेडिसिनल पर्पज़ एंड इरेडिएशन ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। फूड को सिक्योर रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, स्टेरिलाइज करने के लिए, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए। इरेडिएशन फॉर फूड सिक्योरिटी, जिससे फूड ज़्यादा से ज़्यादा आप सेव कर पाएँ, सिक्योर रख पाएँ। तो न्यूक्लियर को आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि इरेडिएटिंग मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल लाइक गॉज, ग्लव्स, सिरिंजेस, अगर उसको आप न्यूक्लियर मटेरियल से स्टेरिलाइज करेंगे तो इससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है, यानी कि उसके अंदर इन्फेक्शन की संभावना कम हो जाती है। सिंस गामा रेज कैन पेनिट्रेट द प्लास्टिक पैकेजिंग ऑफ दीज इक्विपमेंट, दे फर्दर रिमूव एनी कंटेमिनेशन। कोई भी कंटेमिनेशन होगा तो न्यूक्लियर जो गामा रेज होंगी उसको ख़त्म कर देंगे। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कैन बी यूज फॉर इरेडिएटिंग द मेडिकल इक्विपमेंट्स। उसके अलावा BRIT जो हमारा बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी है, विच प्रोड्यूसेस दी आइसोटोप, जो आइसोटोप प्रोड्यूस करता है फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन जो होती हैं, हैव टू एंटर इनटू PPP मोड। अब BRIT को PPP मोड में एंटर करने की जरूरत है, बिकॉज न्यूक्लियर मेडिसिन हमारे बहुत एक्सपेंसिव और आउट ऑफ रीच ऑफ मोस्ट इंडियंस है। मैं बताऊंगा क्यों जरूरी है न्यूक्लियर मेडिसिन। एक्सपर्ट्स एस्टिमेट दैट द कंट्रीज न्यूक्लियर मेडिसिन कैपेसिटी हैज़ टू बी रैम्प्ड अप बाय ए फैक्टर ऑफ एटलीस्ट 10 एंड रिसर्च वगैरह करनी चाहिए टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ पेशेंट। अब न्यूक्लियर मेडिसिन की क्या यूसेज है,
ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियर मेडिसिन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट आर इम्पोर्टेड, अभी बाहर से इम्पोर्ट होता है, इससे कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ता है हमारे यहाँ। बाय एनकरेजिंग स्टार्टअप्स तो रिसर्च वगैरह करें जिससे इंडिया में ब्रेक थ्रू आए। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं इंपॉर्टेंटली। न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ होती है इन डाइवर्स फील्ड सच एज मेडिसिन, स्पेशली कैंसर में बहुत यूज़ होती है। आप जानते हैं कीमोथेरेपी होती है और भी बहुत सारी न्यूक्लियर जो रेज हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उसको यूज़ कर सकते हैं ऐसी इनक्योरेबल डिसीज़ में, इनक्योरेबल डिसीज़ जो ऐसी डिसीज़ हैं जहाँ पे हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं टू क्योर द पेशेंट। बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर रिसर्च करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, उसी वजह से क्योंकि हमारे यहाँ जो न्यूक्लियर मेडिसिन है दैट उसके ऊपर इतना वाइड स्प्रेड रिसर्च नहीं हुआ है, उसके ऊपर ब्रेक थ्रू अचीव नहीं हुआ है, पीपीपी मोड में काम नहीं करता है BRIT। जो भी रेडियो आइसोटॉप्स हैं उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं किया जाता है। न्यूक्लियर वेस्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन को नहीं यूज़ किया जाता है प्रॉपर्ली, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का सिविलियन पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाता एक्सेप्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। हम बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ फूड टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, कंटामिनेशन को दूर करने के लिए कर सकते हैं, इरेडिएटिंग मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए कर सकते हैं, एंड टू प्रोड्यूस द न्यूक्लियर मेडिसिन इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस करे न्यूक्लियर के लिए। तो दीज आर द रिफॉर्म्स, मेजरली रिफॉर्म्स मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो कि चाहिए हमारे न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में, गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करे और इसके ऊपर फोकस करे तो हम न्यूक्लियर एनर्जी को डेफिनेटली बेटर यूटिलाइज़ कर सकते हैं हमारी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के लिए। ठीक है, नाउ इन द माई नेक्स्ट लेक्चर मैं सारे जो ट्रीटीज़ वगैरह हैं, NPT है, CTBT है, NSG है, ये सब डिस्कस करूँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है आपके लिए। तो आप काइंडली नेक्स्ट लेक्चर पे मेरे फोकस करें। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और काइंडली मेरे लेक्चर्स को देखते रहें। टिल देन, थैंक यू सो मच।